Elastic strings. I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on elastic strings. Motion of a particle attached to an elastic string, which comes in Dynamics Mathematics paper 3rd for the students of BSc 6th Sem. Hooke's law: if an elastic string is fixed at one point and is pulled within limits at the other, it is found that length of the string increases. This extension in the string is directly proportional to the product of the tension and natural length of the string, and inversely proportional to the area of the क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. अगर एक इलास्टिक स्ट्रिंग है फिक्स, एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को उसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं और विद इन लिमिट खींच रहे हैं, ठीक, तो दी अदर इट इज़ फाउंड दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज हो जाती है थोड़ी सी. दिस एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज, उसका क्या नियम है, कैसे एक्सटेंड होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन, फोर्स है टेंशन, एंड द नेचुरल लेंथ, टेंशन एंड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इनवर्सली इसके प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया of cross section of the string. Therefore, if XL TA represent extension, L for natural length, T for tension, and capital A for area of cross section, then X equal to LT by lambda capital A implies T equal to lambda capital A into X by L, where lambda is a constant depending on the material of the elastic string. Where lambda क्या है, is constant depending on the material of the elastic string, known as Young's modulus of elasticity. If the area of cross section is so chosen that capital A equal to 1, that is unit area, then T equal to lambda x by L, T बराबर lambda x by L. Thus tension in an elastic string is proportional to the extension produced beyond its natural length. Thus tension in an elastic string is proportional to the extension produced beyond its natural length. This is called Hooke's law. The lambda is called modulus of elasticity. इसको हम Hooke's law कहते हैं, और and lambda is called modulus of elasticity. In particular, if x equal to L, then T equal to lambda L by L, or T equal to lambda. Hence the modulus of elasticity is equal to the force which will stretch the string to twice its natural length. Hence the modulus of elasticity is equal to the force which will stretch the string to twice its natural length. The modulus is equal to the force which will stretch the string to twice its natural length. ठीक. Theorem है: prove that the work done against the tension in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension and the mean of the initial and final tensions. Let OA equal to
A with the natural length of the string was 1 and is fixed at O, जिसका एक एंड फिक्स कर दिया ओके. लेट ओ ए इक्वल टू ए विद द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग was 1 and is fixed at O. लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं. लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड such that B and C be the two positions of the free and capital A of the string during extension. Let OB equal to B and OC equal to C. OB क्या है, B के बराबर है, एंड OC क्या है, C के बराबर है. OB equal to B and OC equal to C. Let lambda be the modulus of elasticity of the string. Then by Hooke's law we have tension at B. If lambda B minus A beta A and tension at C lambda C minus A beta A. B are to find out the work done in stretching the string from B to C. हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी. लेट पी बी एनी पोजीशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन. सपोज दैट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम पी टू क्यू. लेट पी बी एनी पोजीशन ऑफ फ्री एंड of the string during this extension. Suppose that the free end of the string is slightly stretched, थोड़ा सा खींचते हैं from P to Q, P से Q तक, so that PQ equal to delta x. PQ क्या है, delta x है, where OP equal to x and OQ equal to x plus delta x. तो टेंशन एट पी पे टेंशन क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए बाई ए. ठीक है, टेंशन एट पी इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस ए बाई ए. द वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम पी टू क्यू. द वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम पी टू क्यू. Equal tension at P into delta x. P के ऊपर टेंशन लैम्डा x माइनस ए बाई ए. The work done against tension in stretching the string from P to Q. Tension at P into delta x. P के ऊपर टेंशन क्या है, लैम्डा एक्स माइनस ए बटे ए इंटू डेल्टा एक्स. वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक. तो इंटीग्रेशन बी टू सी लिमिट्स लैम्डा बटे ए एक्स माइनस ए डी एक्स लैम्डा बाई टू ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बी टू सी. तो लैम्डा बाई टू ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू ए सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई टू ए सी माइनस बी ए से कट के सी माइनस बी रहेगा, सी माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस ए. सी माइनस बी सी माइनस बी ठीक.
work done against tension in stretching the string from B to C. कर दो इसमें वैल्यू, इसको खोल लो, x माइनस ए होल स्क्वायर। तो c पुट किया पहले, c माइनस ए होल स्क्वायर, फिर b लोअर लिमिट b माइनस ए होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर है ना ये c माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो c माइनस ए माइनस बी प्लस ए इंटू c माइनस ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बाई 2a c माइनस बी, ऐसे c माइनस ए प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो ये लैम्डा बाई 2a c माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, सिंप्लीफाई किया इसको मैंने। तो c माइनस बी कॉमन बटे 2 लैम्डा बाई ए सी माइनस ए प्लस लैम्डा बाई ए बी माइनस सी बी माइनस ए। तो c माइनस बी इंटू हाफ टेंशन एट c हो गया प्लस टेंशन एट b हो गया। तो बी सी इंटू मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी, बी सी इंटू मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी। Hence thus the work done against the tension in stretching the string is equal to the product of the extension and the mean of the initial and final tensions. And thus the work done against the tension in stretching the string is equal to the product of the extension and the mean of the initial and final tensions. Horizontal elastic string. An elastic string of natural length L and modulus of elasticity as 1 and fixed at a point O on a smooth horizontal table. A particle of mass m is attached to the other and capital A pulled to the position B where A B equal to A and then let go। और फिर इसको छोड़ दिया गया। डिस्कस द मोशन। क्या है ये? एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, एज 1 एंड फिक्स्ड at a point O and on a smooth horizontal table. A particle of mass m is attached to the other end A pulled to the position B position तक ले गए where A B equal to A and then let go और फिर छोड़ दिया गया। डिस्कस दी मोशन। तो ये इम्पोर्टेंट है KU 2012 8/6 MDU 2008। Let OA equal to L the natural length of the string. The string is stretched to B and released. B तक स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया। When string is stretched, let and capital A be at P after time t such that A P equal to X. A से P क्या है? X तक है। When कहता है string is stretched, जब स्ट्रिंग को खींचेंगे, लेट एंड ए बी एट पी। ए एंड ओ से ए था ना, वो पी पे चले गया आफ्टर टाइम टी सच दैट ए पी क्या है? एक्स के बराबर आ गया। लेट टी विद द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए की तरफ टेंशन क्या है? उल्टा हो गया ना, जिधर खींचेंगे उससे अपोजिट जाएगा टेंशन। लेट टी विद द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए since tension is the only force causing motion। कहता टेंशन is the only force, ये only force है causing motion। The equation of motion of the particle is since tension is the only force causing motion
मोशन जिसके कारण होता है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस टी। तो टेंशन अपोजिट है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स बाई एल, हुक्स लॉ से। तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे एम एल इंटू एक्स इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, वेयर म्यू इक्वल टू लैम्डा बटे एम एल। This shows that so long as the string remains stretched, the motion is simple harmonic about A। इससे क्या होता है? This shows that so long as the string remains stretched, the motion is simple harmonic about A। Also amplitude of SHM equal to AB equal to A। Also this shows that so long as the string remains stretched, motion is simple harmonic about A। Also amplitude of SHM equal to AB equal to A। This shows that so long as the string remains stretched, जब तक खींचा रहेगा, this string remains stretched, the motion is simple harmonic about A। जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक होगा अबाउट A। जब तक स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेच होगा, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अबाउट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट सिंपल हार्मोनिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी टू एक्स बाई डी टी टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ठीक। ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ए टू बी, ये ए के बराबर है, कैपिटल ए से बी इक्वल टू ए से है। ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इक्वल टू ए बी दे रखा है ए। तो फाइंड द वेलोसिटी, इक्वेशन 1 इज रिटन एज, इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे? न्यू बी बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन होगा बी डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे एल एम इंटू एक्स। डी टू एक्स बटे डी टी टू को आप क्या लिख सकते हैं? बी डी बी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, बी डी बी बाई डी एस इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे एल एम इंटू एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव हाफ वी स्केयर इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे टू एल एम, माइनस लैम्डा बटे टू एल एम एक्स स्केयर प्लस सी। हाफ वी स्केयर इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे टू एल एम एक्स स्केयर प्लस सी। एट बी एक्स इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए, बी के पास क्या है? एक्स इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए एंड वी इक्वल टू 0। कैपिटल बी पॉइंट पे एक्स क्या है? ए बी है और ये ए के बराबर है एंड वेलोसिटी 0 हो जाती है। देन सी इक्वल टू 0 भी लैम्डा बटे टू एल एम एक्स बराबर ए है, तो ए स्क्वायर बाई 2। तो इसलिए फ्रॉम सेकेंड सी की वैल्यू हम पुट करो तो बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे टू एल एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बटे टू एम एल इंटू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे टू एल एम एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बटे टू एम एल इंटू ए स्क्वायर, लैम्डा बटे टू एम एल इंटू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे टू एल एम
टू है ना, इसके आगे लिया 2lm के आगे एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा सी की वैल्यू रख दी बटे 2ml ए स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बटे ml ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट ए पे रीच करेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बटे ml इंटू ए स्क्वायर, तो v क्या होगा, वेलोसिटी अंडर रूट लैम्डा बटे ml इंटू ए, ठीक। थर्ड इक्वेशन है विच इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी है अंडर द रूट लैम्डा बटे ml इंटू ए अलॉन्ग ए ओ की तरफ। द पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाता है। ऑन क्रॉसिंग ए को जब क्रॉस कर देगा तो स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। देयरफॉर नो टेंशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल पे कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगी एंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू ए डैश, ए से ए डैश पर चला जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश इक्वल टू एल, ओ ए एल था नेचुरल लेंथ और ओ ए डैश भी एल है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन बाई इक्वेशन थर्ड। यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी से v बराबर अंडर रूट लैम्डा बटे ml इंटू ए। एंड द पार्टिकल मूव्स बियॉन्ड ए डैश द स्ट्रिंग इज अगेन स्ट्रेच्ड, जो पार्टिकल मूव करता है व्हेन द पार्टिकल मूव्स बियॉन्ड ए डैश द स्ट्रिंग इज अगेन stretched and the particle moves under SHM from A dash and B dash, A dash and B dash, where A dash B dash equal to AB equal to A. At B dash the particle comes to rest and begins to move back similarly to the point B. The time from A to A dash टोटल डिस्टेंस बटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2l हो गया टोटल डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी है अंडर रूट लैम्डा बटे ml इंटू ए, एल जमा एल है, ए टू ए डैश एल जमा एल, 2l बटे ए अंडर रूट ml बटे लैम्डा। टाइम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक 1/4 टाइम पीरियड, तो 1/4 टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल हार्मोनिक में 2 पाई बाय अंडर रूट म्यू, तो π/2 म्यू क्या होता है अंडर रूट ml बटे लैम्डा। टोटल टाइम ऑफ मोशन 2 टाइम फ्रॉम B to B dash, 2 टाइम फ्रॉम B to A प्लस टाइम फ्रॉम A to A dash, B से A से A dash प्लस टाइम फ्रॉम A dash to B dash। थैंक्स।